Hello, bachcho, let's read the given question. The question says the total energy of a particle executing SHM of period 2 pi second is 10,240 ergs. The displacement of the particle at pi by 4 second is 8 root 2 centimeter. Calculate the amplitude of motion and mass of the particle. So, to understand the question, we need to understand about the key concept of the total mechanical energy associated with particle performing SHM. सो अगर हम बात करें एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, से उसके पास दो एनर्जीज हैं. वन इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम के की वैल्यू कैन बी रिटन एज ओमेगा m omega square, right? So in that situation we can say it can be written as m omega square into x square. So this is about the potential energy. अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी फॉर अ वी स्क्वायर, and since v for a particle performing SHM is given by the expression omega under root of a square minus x square, which ये सारी चीज़ें we have already studied, just we are summarizing it over here to have a clarity of this question. So यहाँ पे हम m v की जगह पे will substitute this value, so ये हो जाएगा m omega square a square minus of half m omega square x square. So this is the kinetic energy. अगर हम बात करें total energy की, so it will be the sum of potential plus kinetic, and ये result आता है half m omega square into a square. ठीक है. So this is the thing we need to keep in mind. Apart from this, for a particle performing SHM, its displacement equation is given by the formula half x equals to a sine omega t plus phi basically, right? हमें find क्या करना है? We are interested in calculating the amplitude of the motion, right? Amplitude of the motion and mass of the particle. So हमें displacement of the particle भी given है किसी time pi by 4 time पे. So these are the things we need to keep in mind. यहाँ पे we need to be careful कि जो displacement equation लिखा है वहाँ पे a is the amplitude, omega t, omega is the angular frequency, and t is what the time at which we are talking out or we are calculating the displacement. Phi is the initial phase. अब initial phase के regarding we can say it will be taken as 0 if the particle is starting from mean position, that is MP, and if the particle starts from extreme position, तो pi by 2 हम लेंगे phase को, that is initial phase. So extreme position means EP we are writing. So ये basic understanding we already have, and just to summarize it we can we have listed it over here. अब यहाँ पे हम एक एक करके फाइंड करते हैं. हमें टोटल एनर्जी गिवन है एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड इज दिस, राइट. सो अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, सो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम उसका टाइम पीरियड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई बाय ओमेगा, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के. ठीक है ना. अब यहाँ से वी कैन सी कि हमें टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें m भी अननोन है हमारे पास. ओमेगा की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट दिस एज टू बी 2 पाई बाई टी हम रख सकते हैं ओमेगा को, राइट. एंड एम्पलीट्यूड इज स्टिल अननोन. सो हम इसको अभी फिलहाल डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. तो अब हम क्या करते हैं, वी कैन गो फॉर यूजिंग दिस, दोनों एक्सप्रेशन बना के रख लेते हैं, दैट इज फिर देन वी विल ट्राई टू कंपेयर द रिलेशंस. सो टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, इट विल बी 10,240 अर्ग्स, तो ये हो जाएगा 20,480 अर्ग्स विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा की स्क्वायर की. अगर हम बात करें सो ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड 2 पाई गिवन है तो ये 1 ही हो जाएगा बेसिकली, राइट. टाइम पीरियड इज गिवन 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड इनटू ए स्क्वायर. ठीक. सो ये रिलेशन हमें मिल रहा है ए स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू 20480. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1 है हमारा. ठीक है. अब हम बात करते हैं दूसरा एक्सप्रेशन की, x की. द डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 8 रूट टू डिस्प्लेसमेंट गिवन है. एम्पलीट्यूड का पता नहीं हमें. साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा तो 1 ही है हमारे लिए, राइट. टी की अगर हम बात करें सो इट इज पाई बाय 4. हम कंसिडर कर रहे हैं द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट. हमेशा पार्टिकल मीन पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं फॉर अ पार्टिकल कंसिडर टू बी टेकन एज एसएचएम. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से अनलेस नॉट बीन मेंशनड कि अगर कुछ मेंशन किया है कि कहाँ से स्टार्ट करा, देन वी नीड टू गो फॉर दैट कंडीशन. अभी यहाँ पे फिलहाल वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. सो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 क्या होता है?
sin pi by 4 is 1 by root 2. So ये हो जाएगा 8 into root 2 will be 2 and that will be equals to a. So a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16 सेंटीमीटर. तो एम्पलीट्यूड हमें मिल चुका है, राइट. एम्पलीट्यूड हमें मिल गया. वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन 1. सो फ्रॉम 1 वी कैन से फ्रॉम 1 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मीन्स 256 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इज 256 इंटू एम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20480. एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 grams. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.